It's an unprecedented turnout at the Kumbh, Mahakumbh 2025. Over 45 days, the estimate was just that it would be about 1 crore people per day, about 45 crore people. But it's gone up, overshot by nearly 20 crore, and it's still counting. On the day of Mahashivratri, let's go straight across to Puja Swami Chidanand Saraswati ji, who is the guiding light of the Paramarth Niketan. But he's also doing some phenomenal work over the last 40 odd days at the Kumbh. Puja Swamiji, Namaste. This is Anand Narasimhan here. Thank you very much for your time. Namaste. Wonderful. Good to speak with you, and it was also good to see you in the thick of everything, trying to do so much seva when I came to Prayagraj. But let me first ask you, sir, 65 crore and counting, what is bringing all these people to Kumbh this year? It is an amazing ocean of faith. I cannot believe it that every day what I have seen here, because from the day one I am here, I can tell you that the devotion of the people, the dedication of the people, they are not worried about anything else, just one dip. बस एक डुबकी लग जाए, काम बन गया. और फिर इतना ही नहीं है कि एक डुबकी लग जाए, जो भी आया कोई भूखा नहीं सोया, जो भी आया वो कुंभ में तो संगम में तो नहाया, लेकिन इस देश के सनातन के संगम का भी उसको एहसास हुआ कि क्या है मेरा देश, कैसे हैं मेरे लोग, अमेजिंग पीपल, इनक्रेडिबल पीपल. और उनका जो भाव है, मुझे लगता है कि ये भीड़ की यात्रा नहीं, ये भाव की यात्रा है. पूरा संगम, हर घाट जहां जाओ, मैं तो पहले दिन से देख रहा हूं, केवल सुबह नहीं, दोपहर नहीं, शाम नहीं, मैं तो रात को भी उठ कर 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे भी देखा है. हर समय पूरा वातावरण भक्तिमय है, आस्थामय है, दिव्यता से भरा है. People have not seen ever like this, because so many people are coming to our camp and staying here for so many countries. Even today we were talking about, we are celebrating here 108 names of Shiva, 108 artists, kalakars, and 108 canvas, and 108 names of Shiva. They all are 108 artists are here. They are so amazing. Just being here, not only they are painting the glory of Shiva, but they are painting the glory of devotion also. So everybody is full of devotion, full of dedication. And the one thing I have seen, the management is so amazing. Let me tell you, whether it's a crowd management, whether it's anywhere somebody try to create chaos even, that chaos management also, and the safety management, security management, and flower management, when all the devotees are, all the saints are having the dip in the Sangam, all the helicopters are coming and showering the beautiful divine rose petals. Everybody is astonished. And then the fire management, amazing fire management. Few times it happened, and then whenever it happened, I can tell you the first incident. We were nearby 4:08 p.m. It happened, and 4:11 all the fire brigade vehicles were there. Not one, not two, not four, not five. 45 in 3 minutes. Can you imagine? I have never seen in any country of the world. 45 vehicles, and in 20 minutes. So they took over the control, they took over everything, and it was amazing. Puja Swamiji, let me ask you this. So for those who said कि सनातन खतरे में है, will this reassure a lot of people कि सनातन safe है? 65 crore and counting who have come to do this आस्था की डुबकी. मुझे तो लगता है कि अच्छा हुआ ये कुंभ हुआ, ये महाकुंभ हुआ. बड़े नैरेटिव, बड़ी नेगेटिविटीज, बड़े बड़े नारे, वो भी इस संगम के जल में डूब गए. लोगों की डुबकी को देख देख कर सनातन के इस, मुझे तो लगता था केवल लोग नहीं यहाँ पर स्नान कर रहे, सनातन ही नृत्य कर रहा है. सनातन इज डांसिंग हियर. I have seen it. The faith of the people, the love of the people, the devotion of the people were dancing here. We have seen it.
और जिनके नैरेटिव और नेगेटिव, तो मैं तो सोचता हूं कुंभ की इस शक्ल को देखकर लोगों की अकल भी बदल गई है। लोगों को लगने लगा यार कहां गलती कर दी हमने। और अब भी समय है। मैं तो याद दिलाता हूं सनातन की वो ताकत, जो खोया उसका गम नहीं, जो बचा है वो किसी से कम नहीं। अभी भी बहुत कुछ बचा है। इस सनातन ने सनातन की इस भारत की विराट चेतना का दर्शन कराया है, विराट स्वरूप का दर्शन कराया है। और उस विराट स्वरूप को देखकर मुझे लगता है कि सनातन था, है और रहेगा। पर क्योंकि स्वामी जी मैं पूछ रहा हूं कि राजा से रंग तक, हीरो से हंक तक और अलग अलग पंथ तक सब लोग आए थे, आप सबसे मिले भी। What was their reaction? I know you met, the former Kerala governor Mohammad Arif Khan Sahab. You had lot of Hollywood and Bollywood heroes and superstars and celebrities coming in. कई सारे उद्योगपति भी आए। सबका भाव क्या था, रिएक्शन क्या था? Did they come with a particular mindset, thought process, और फिर कुछ और सोच के गए? Only one thing, they said, this is so incredible. Only the Honorable Prime Minister of India, his vision, his way of thinking, his way of planning, very quietly he does things and people can see the power of it. Everybody was astonished. Even yesterday I had a son of Mr. Steel King, our Alan Mittal. He told me, Swamiji, and with him there were 50 top CEOs of the world. They all were astonished. They were in our camp when we were discussing, sharing thoughts with them. और शाम को गंगा जी की आरती हुई। मैं आपको बता नहीं सकता, उन्होंने कहा कि बस मेरे जीवन का ये इतना बड़ा क्षण है, इतना बड़ा डिवाइन क्षण है। एंड आफ्टर सीइंग द डिवाइन गंगा आरती ऑन द बैंक्स ऑफ संगम एंड सीइंग द डिवोशन of the people, we all are coming to Rishikesh next week and we want to experience more. इसका मतलब क्या है? जो भी आया है वो आना चाहता है, जो आया है वो बार बार आना चाहता है। बल्कि कुछ लोगों ने ये कॉल किया कि जो भी लोग आए ना, प्लीज आप गंगा जल, आप संगम का जल, आप संगम की मिट्टी उनके साथ भेज दीजिए, ताकि हम उस संगम की माटी को, जहां लाखों संतों ने अपने चरणों But Swamiji, many are saying this is Mrityu Kumbh and that water is all has nothing but fecal bacteria. They are quoting Pollution Control Board this one कि पानी दूषित है, ये तो मृत्यु कुंभ है। ऐसा तो कुछ पूर्व मुख्यमंत्रियों और मौजूदा मुख्यमंत्रियों ने कहा। When the thoughts are contaminated, when the heart is contaminated, whatever you see it becomes contaminated. जैसा आप सोचते हैं वैसा आप देखते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी। सच बात तो ये है, मैं आपको बताता हूं, हमारे आरिफ मोहम्मद खान साहब जब वे आए 3 घंटे में सिटी से 3 घंटे में हमारे कैंप तक पहुंचे। और 3 घंटे में मैंने उनको पूछा कैसा लग रहा था? ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, आप इतना फंस गए। बोले मैं फंसा नहीं था, मैं तो उस 3 घंटे में इस देश की, इस जनता का दर्शन कर रहा था। मैं तो 3 घंटे में धीरे धीरे गाड़ी जरूर चल रही थी, लेकिन मैं फंसा हुआ महसूस नहीं कर रहा था। उन 3 घंटों में मुझे करोड़ों लोगों की आस्था का जो दर्शन कराया है, बोले मेरा तो कुंभ हो गया। ये है कुंभ को देखने का तरीका। हम कुंभ को देखना कैसे चाहते हैं? कुछ लोगों ने कहा कुंभ, अरे ये तो फालतू लोगों का काम है। मुझे लगता है कि जब हम पालतू लोगों के लिए, केवल पालतू लोगों के लिए सोचते हैं, फालतू लोगों को दिमाग में रखते हैं, तो बहुत कुछ फालतू लगता है। ये फालतू नहीं है। जब हम कुछ, मेरी सोच जब फालतू हो जाती है तब मैं ये देखता हूं। कुछ लोगों ने कहा कि मृत कुंभ है, मृत्यु कुंभ है। मैं तो कहता हूं मृत्यु कुंभ नहीं, ये महान कुंभ है। और इसकी शुरुआत 2014 में शुरू हो गई थी। 2014 ने अंगड़ाई ली, करवट बदली, और करवट के साथ, अंगड़ाई के साथ इस पूरे देश की दशा बदल गई, इस पूरे देश की दिशा बदल गई। ये 12 साल का कुंभ, महाकुंभ है, लेकिन 2014 से 2025 तक ये अपने आप में जो 12 साल है, ये भारत के ऐतिहासिक और स्वर्णिम काल है।
जी। जिसने एक नई दिशा दी है, जो जिससे लोग भारत को महान भारत की ओर ले जाया है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं, कई बार आए, ही ऑल्सो केम मनी टाइम्स एंड ही इज ऑल्सो द एंटायर एस्टैब्लिशमेंट देयर, यू नो, द उत्तर प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन, IAS ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स एंड इवन द अखाड़ास, जिसके आप भी पात्र हैं, उन पूरे जो महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी के साथ भी आपने भी काम किया है, और आपका भी अखाड़ा परमार्थ निकेतन ने भी बहुत कुछ वहाँ काम किया है। देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ वर्क, टायरलेस वर्क। कहीं ये फटीक भी है पूज्य स्वामी जी कि दैट एज प्रयागराज इज सेइंग कि हर बार हम इसको नहीं हैंडल कर सकते, ये बार बार नहीं हो सकता? India has shown to the world India can handle it, and now if India can handle this scale of Mahakumbh, India can handle anything. Let me tell you, under the guidance of our Honorable Prime Minister of India and the leadership of our respected Yogi ji, everything is possible and people have seen it. मैं आपको बताना चाहता हूँ, अखाड़ों ने भी गजब काम किया। वो एक मोमेंट था, जो चीजें टूट सकती थी, बहुत कुछ घटनाएं घट सकती थी, लेकिन मैं उन अखाड़ों के उन महापुरुषों को भी प्रणाम करता हूं कि उन्होंने ऐसे क्षण में आकर कहा, इस समय हमारा स्नान मैटर नहीं करता, बल्कि हमारा समाज, हमारे भक्त समाज, हमारे करोड़ों लोग, दैट मैटर टू अस, नॉट आवर स्नान। इवन वी कैन डू द स्नान टुमारो, चलेगा, लेकिन लेट द पीपल, लेट द डिवोशन ऑफ द पीपल विच वी कैन ऑल्सो सी, लेट देम हैव द डिप फर्स्ट, वी विल टेक इट लेटर। ये पहली बार हुआ है, पहली बार हुआ है। और आदरणीय योगी जी, मैं आपको बता दूं, कई बार क्या होता है, कई सीएम तो अपने क्षेत्रों में 5 साल में एक बार नहीं जा पाते, लेकिन यहां तो योगी जी हर हफ्ते 3-3 बार आए, 4-4 बार, जब जब जरूरत पड़ी, शुरू में, बीच में, और हर बार, हर स्नान से पहले 2-2 दिन का डेरा डाल के करते रहे। और फिर सवेरे 3 बजे उठ के बैठ के टीवी खोल के, CCTV बिठा लिया अपने अफसरों को, वहीं से बैठे बैठे, ताकि यहां जाएंगे तो लोगों को तकलीफ होगी, वहीं से बैठे बैठे वो देखते रहे। वेयर यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ चीफ मिनिस्टर, अमेजिंग डेडिकेटेड चीफ मिनिस्टर। ये भारत का भाग्य है, भारत के पास ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं। ये भारत का भाग्य है कि उत्तर प्रदेश के उत्तम बनाने वाले मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिन्होंने सचमुच रात रात जागकर, भूखे रहकर, प्यासे रहकर, जगह एक के बाद एक, दूसरा, तीसरा, चौथा इवेंट करते हुए उन्होंने इस तरह से सजाया है कि आज पूरा विश्व इस कुंभ मेले पर रिसर्च करेगा, थीसिस लिखेगा। काफी सारे प्रोफेसर, स्कॉलर्स हमारे कुंभ में आए, मिले, उन्होंने कहा, स्वामी जी, आई थिंक वी आर गोइंग टू। जी स्वामी जी, समय अल्प है, इसलिए 2 अंतिम प्रश्न आपसे पूछूंगा। पहला प्रश्न यह है that माँ गंगा के किनारे is where Parmarth Niketan is in Rishikesh, and you were one of the first people to start this entire clean Ganga, Namami Gange, the whole aspect. अब यमुना की सफाई की बात हो रही है, cleaning up other rivers. Is this possible? Because one of the detractors जो कहते हैं कि भाई अगर आप ऐसे कुंभ का आयोजन करते रहोगे तो नदी तो और दूषित ही होगी, फिर से वही बात शुरू हो जाती है। अब अगर आपने यमुना को भी यही करेंगे कहा, सब जगह, सब नदियों में ऐसा होने लगा, लोग आने लगे, तो फिर दूषित ज्यादा होगी, सफाई कैसे होगी नदी की? बात नदियों में स्नान करने की नहीं है, बात नदियों को कैसे हम रखते हैं उसकी है। सच तो ये है, कुंभ का मेला तो सजा है, महाकुंभ सजा है, सबने देखा। अब तो दिल्ली भी सज गई है। अब जब दिल्ली सज गई है, पक्का मानिए 1 साल के अंदर अंदर, मुझे तो लगता है कि मैं एक प्लान भी बना रहा हूं। मैंने आदरणीय गवर्नर साहब से भी पिछली बार शेयर किया था। आदरणीय ओम बिरला जी जब यहाँ पर आए थे, मैंने कहा, लेट देयर बी ए यमुना पार्लियामेंट इन दिल्ली एंड ऋषिकेश, एंड वी आर गोइंग टू प्लान फॉर दैट, कि सबको मिलाकर, क्योंकि यमुना जी सबकी हैं, जब यमुना जी सबकी हैं तो सबको मिलाकर ये पॉसिबल है। 22 दिन में 22 किलोमीटर, एंड इट कैन हैपन, आई एम टेलिंग यू। 22 दिन में 22 किलोमीटर, और उसका पूरा प्लान बना के 1 साल के अंदर अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने भी उस दिन, जब उन्होंने शपथ ली, कहा कि मैं सबसे पहली प्राथमिकता है यमुना जी। और मुझे तो लगता है कि यमुना जी के तट पर जब जाकर उन्होंने आरती की, मैं कुंभ के मेले से उनको दुआएं, आशीर्वाद दे रहा था कि लेट अस बी टुगेदर। और मुझे लगता है 1 साल के अंदर अंदर उस स्वच्छ यमुना में, यमुना जी दिव्य हैं, यमुना जी पवित्र हैं, लेकिन शुद्धता के रूप में उसको हमें देखना। बल्कि हमने तो ये भी किया है कि कल सवेरे प्रातःकाल, जब आज सब लोग स्नान कर चुकेंगे, कल प्रातःकाल का स्नान होगा,
उसके बाद हम सब लोगों ने संगम में स्नान किया है, लेकिन अब जाने से पहले मैं 2-3 दिन और रुक रहा हूं कि जाने से पहले संगम को स्नान कराएंगे। और संगम को स्नान कराने का मतलब है जहां जहां जिस घाट पर लोग आए हमारे सामने, उस पूरे एरिया को स्वच्छ बनाकर यहां से निकलेंगे, ताकि जैसा संगम ने, मां गंगा ने, यमुना ने हमको स्वरूप दिया था, उनके तटों को वापिस वैसा ही छोड़कर जाएं। ये हम सबका पावन कर्तव्य है। तो आप लोग बैठकर, आप लोग वॉलंटियर्स और परमार्थ निकेतन की तरफ से आप कह रहे हैं कि कुंभ की भी पूरी तरह से साफ सफाई कर करके और सभी नदी के तटों को साफ छोड़ करके देन वी विल गो, बट यू आर सेइंग 22 days 22 kilometers, so and it's possible to clean up the Yamuna in Delhi, and you are proposing a Yamuna parliament. That's fantastic. Definitely. And we're looking forward to that. Swamiji, my final question to you today is Shivratri. So Shiva and Shakti, the union, iski mahima, and what does it make it, why is it so special at this Mahakumbh 2025? मेरा अंतिम प्रश्न शिव की महिमा से ये है, उसी जटाधारी की जिन्होंने माँ गंगा को धरती पर आने दिया, so that's the story, so please. ये तो उनकी कृपा है, महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, और उनकी वजह से माँ धरती पर उतरी। और आज संगम के पावन तट पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये इस देश का सौभाग्य है कि इस देश के पास गंगा है। ये इस देश का सौभाग्य है कि इस देश के पास आदि योगी हैं। वो आदि योगी भी हैं और आदि गुरु भी हैं। वो सब कुछ हैं, जो कुछ नहीं दिखता लोगों को, वो भी हैं और उससे ऊपर भी हैं। वो शक्ति और भक्ति का संगम है। ये शिवरात्रि का पर्व शिव और शक्ति का संगम है, सच्ची पूछे तो। और शिवरात्रि का पर्व भीतर की मस्ती का संगम है। शिवरात्रि का पर्व ध्यान का पर्व है। शिवरात्रि का पर्व भीतर उतरने का पर्व है। शिवरात्रि का पर्व खुद को तलाशने का, खुद को तराशने का और गहरे उतरने का पर्व है। इसलिए शिवरात्रि के पर्व पर ओम नमः शिवाय त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम के साथ आज हम सब लोगों ने जब यह डुबकी लगाई, आपको बताऊं सच्ची, हमने एक डुबकी राष्ट्र के नाम भी लगाई। सबने मिलकर शिवरात्रि पर एक डुबकी राष्ट्र के नाम लगाई और साथ में यह भी संकल्प किया, पुराना जो भी नैरेटिव्स हैं, नेगेटिविटीज हैं, नारे लगाने वाले लोग हैं, उनके लिए भी स्नान किया, ताकि उनकी भी बुद्धि शुद्ध हो। वो भी महान भारत की यात्रा में शिवरात्रि के पावन पर्व पर, क्योंकि केवल ये रात को जागने का पर्व नहीं है, बल्कि खुद को जगाने का पर्व है। खुद को जगाने का पर्व है। इसलिए वो लोग भी जगे जो भी सोए हैं, अपने महान भारत की चेतना को पहचान नहीं पा रहे हैं। हमने तो उनके लिए भी प्रार्थना की है, क्योंकि वो भी तो अपने हैं। कोई बात नहीं है, वो अलग दल से आते हैं कई बार, लेकिन मैं तो ये भी कहना चाहता हूं, चुनाव से पहले दल होने चाहिए, चुनाव के बाद देश होना चाहिए। हर समय चुनावी राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति से भी देश को राष्ट्र नीति से देखा जाना चाहिए। अपने अपने घरों में, अपने अपने दिलों में, अपने अपने मंदिरों में देव भक्ति करें, लेकिन देशभक्ति सब मिलकर करें। यही शिवरात्रि पर हमने भगवान शिव से प्रार्थना की है। जिस दिन ये होटेगा उसी दिन महाशिवरात्रि, उस दिन हर पल महाशिवरात्रि है प्रभु। वेरी व्हाट अ लवली मैसेज कि देखिए एक डुबकी आपने राष्ट्र के नाम लगाई, दैट मीन्स यू हैव टू हैव द कलेक्टिव थॉट अबाउट द नेशन इन आवर हार्ट्स एंड आवर हेड्स एट ऑल पॉइंट्स इन टाइम, एंड व्हाट अ लवली मैसेज on the day that celebrates he who is supposed to be the overlord of space time and also Mrityunjay, that means he who conquered death, that is Shiva. Thank you so much Pujya Swamiji, always a pleasure speaking with you. बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। नमस्ते।